the meeting is being held outside the campus of University of Jammu in another campus, and that is Bhadarwa campus, where all members are going to go there physically, and we will be attending. There are about 85 members of this academic council, and there are some members who are also outstation members, other than the Jammu University members, like the heads of the departments from Jammu University are there. But besides heads of the department, there are people from colleges also who are members of this particular committee, and as well as there are some deans from Kashmir University also who are going to arrive at this particular venue, which is Badarwa campus, and this meeting will be held on 15th. So we have a huge academic agenda, considering the fact that we are now into the era of the National Education Policy 2020, and from this academic year, which would start in August, our National Education Policy uh, would be also implemented in our PG courses, because our undergraduates will now come from there after doing their 3 years undergrad from in national education. And besides that, we're also taking many of the other agendas with there. Like Mansi also said, this is like we have not only restricted to the academic council, and I think we some will talk about it. I'll briefly talk about it, and we have other events also which we have taken care, and we've also taken care that we are able to make a connect with the civil society, and that is very important, because as you know, university is a public funding. It's an organization where it's also an input with the money which comes from the government, is the taxpayers' money. So we are answerable to the taxpayers, and in that sense, we will also talk to the civil society. What are their ideas and what they want in the campuses, and what are their issues? And there are other features also which would be happening during. And one of the features which is going to happen is also our panel discussion, which will take place, and there we formed about 6 working groups, which will talk about new ideas and new functions. For example, skilling is one of the things which is now there's a lot of emphasis laid down all over the world. There is entrepreneurship. There is also there are these talks about internationalization of Jammu University. So we want to take Jammu University to that height that it is globally known as a institute, and students would be wanting to come here, and students would be interested to come to Jammu University, because our academics should be at par with the universities all over the world. So these are some of the features, and besides that, we'll also be doing some cultural activities with the other members of the society, and signing some of the MOUs which we are going with. I'll now leave it to Sir to Okay. talk Uh, about this. so at the outset, I welcome you all and express my sincere thanks to each one of you from core of my heart, and also thanks my colleagues who are here and who are not here but supporting the activities of the university. So this press conference is organized just to brief you about the history which is going to be made by the University of Jammu. So, in the past, the academic council meeting used to be held in the main campus. For the first time in the history of the University of Jammu, the academic council meeting is going to be held at our Bhadarwa campus. And the idea is that to empower our off-site campuses, which are currently in isolation, not connected with the main campus as it should be. And the onus lies on me, being the Vice Chancellor. It's my responsibility to make our off-site campuses not only functional but in good shape. So I thought to organize series of activities in off-site campuses. We are starting with Bhadrava campus, but we are planning the activities to be held at the Udhampur campus, Kathua campus, Ramnagar campus, Punch campus, Kishtwar, uh,
Riyasi. So I think we have 7 off-site campuses. So one by one, the activities, one or the other activities would be held, and then for that I need your support also, because through you I can communicate to the society, to connect with the institution. तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, मैं अभी एक हफ्ता पहले भद्रवा गया था, इसीलिए कि हमारी एकेडमिक काउंसिल मीटिंग होने वाली है। तो सिविल सोसाइटी और आर्मी कैसे हमारे साथ जुड़ सकती है, एंड आई हैड डिस्कशन विद द ब्रिगेडियर जो वहाँ कोर आई थिंक RR है उनके साथ, and we are planning for a tailor-made course, undergraduate as well as postgraduate, for them, and simultaneously they will help our students in skilling. So it's a win-win situation for both of them, and the idea is that, look, I can share with you, is nothing to hide. What I discussed with them, that आपके जो जवान हैं या ऑफिसर हैं, वाइल वर्किंग एट योर यूनिट, वो जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, यू डेवलप अ मैकेनिज्म फॉर इवेल्युएशन, एंड आपको उस पर जो लेक्चर्स आप देते हैं उनका आपको असेसमेंट इवेल्युएशन करके कितना क्रेडिट का कितना कोर्स आप बनाते हैं वो आप करिकुलम बना लीजिए। फॉर रिमेनिंग क्रेडिट्स हमारे लोग जा कर के कर देंगे, वहाँ पर ऑनलाइन भी हम लेक्चर्स कर सकते हैं। सो उनको उसके लिए लीव लेकर के आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड द यूनिवर्सिटी विल सपोर्ट दैट। ये एक चीज़ थी। साइमल्टेनियसली मैं पुंछ गया और आई हैड मीटिंग विद द ब्रिगेडियर, सर्टेन थिंग्स विच ही वांटेड फॉर इंटर्नशिप फॉर माय स्टूडेंट्स, वो बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स आई कैन नॉट डिस्कस ओपनली। So he wanted that my students, he can give the projects के ये हमारी रिक्वायरमेंट है और उस रिक्वायरमेंट पर आपके बच्चे काम करें। So I said fine, वो हम करेंगे। उनके यहाँ के लिए भी जो भद्रवा का कोर्स मतलब स्ट्रक्चर बनेगा, the same would be applicable for the पुंछ हाउस। तो ये एक प्लान था जो जिसके लिए मैं पुंछ भी गया और भद्रवा भी गया हूँ। दूसरी चीज़ आपसे शेयर करना था कि एकेडमिक काउंसिल तो 2 घंटे की अपनी एक्टिविटी जो 2.5 घंटे या 3 घंटे की होगी, उसके साथ सीरीज ऑफ एक्टिविटीज आर प्लान। सो एज डीन एकेडमिक अफेयर्स मैम अप्राइज्ड यू अबाउट दैट, सो वी आर होल्डिंग अ पैरेलल डिस्कशन ग्रुप्स, 6 ग्रुप्स बने हुए हैं, एंड ईच ग्रुप को मैंडेट दिया गया है कि ये थीम है और इस थीम पर आपको एक पेपर तैयार करना है कि यूनिवर्सिटी को आने वाले समय में इस एरिया में, फॉर एग्जांपल सी सेट मल्टी डिसिप्लिनरिटी। तो होता क्या है कि कंसेप्ट जो मल्टी डिसिप्लिनरी का होता है कि एक टीचर हमारे यहाँ जूलॉजी में अगर मान लीजिए कि कोर्स लॉन्च है तो उसमें जियोलॉजी का या हिस्ट्री का कोई व्यक्ति आकर के ले लेक्चर, वो नहीं है। इट्स नॉट मल्टी डिसिप्लिनरिटी। देयर इज ए प्रॉब्लम, सो यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, and to solve that problem the faculty or expertise from different streams, they can join their hands together to address that problem. So वो multidisciplinarity है। तो उसको लेकर के हमारे इंटरप्रेन्योर्स बच्चे कैसे बन सकें, जॉब सीकर से जॉब प्रोवाइडर की तरफ कैसे बढ़ सकें, उसको लेकर के है। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ जम्मू यूनिवर्सिटी, हम उसको और ग्लोबली कैसे लेकर के जा सकते हैं, उसको लेकर के है। स्किलिंग को लेकर के है, स्टार्टअप को लेकर के है, एकेडमी इंडस्ट्री इंटरेक्शन को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं, उसको लेकर के है। सो सीरीज ऑफ डिस्कशंस आर गोइंग टू बी हेल्ड देयर, और उससे जो चीज़ें निकल करके आएंगी वो हमारे लिए एक रास्ता बनेंगी। ये एक चीज़ थी जो आपसे शेयर करना था। दूसरी चीज़ कि यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू has resolved to launch an undergraduate program in the university. So, अभी तक क्या था, अंडर ग्रेजुएट कॉलेजेस में था, पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में था। अब हम अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम भी शुरू करना का सोच रहे हैं,
सो वो पार्ट भी हम डिस्कस करेंगे इस बार कि उसका करिकुलम बाई एंड लार्ज, मेरा ये सुझाव है, एकेडमिक काउंसिल उस पर डेलिबरेट करेगी और डिसीजन देगी कि बाई एंड लार्ज हम डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम, नॉट एग्जैक्टली उसी प्रोग्राम पर, लेकिन उससे मिलता जुलता प्रोग्राम। सो उसमें क्या करेंगे, वी वुड एडमिट द स्टूडेंट्स नॉट इन ए स्ट्रीम कि बीए के लिए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए, बीटेक के लिए, उसका एडमिशन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में होगा और कुछ कोर्सेज उन बच्चों को कंपलसरी होंगे, जैसे कि आईटी, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल एबिलिटी, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन स्किल, कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब कोर्सेज जो हैं वो कॉमन होंगे। ईच स्टूडेंट वुड बी empowered with all those skills which are required to pursue education further or for placement either in the industry or in any government offices. So that's thing, and apart from that then बास्केट ऑफ कोर्सेज होंगे, जैसे ह्यूमैनिटीज का बास्केट ऑफ कोर्सेज है, सोशल साइंसेज का है, साइंसेज का है, बायोलॉजिकल साइंसेज का है, या और किसी स्ट्रीम का, कॉमर्स का है। उसमें से स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट्स कुछ न कुछ लेगा और टेस्ट उसका क्या, उसका इंटरेस्ट कहाँ बनता है, तो 2 साल में वो अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे जाना कहाँ है, एंड अकॉर्डिंगली फिर 3rd ईयर में वह तय करेगा कि मुझे बीए करना है, बीकॉम करना है, बीएससी करना है या बीटेक करना है। तो ये एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो सोचे हैं हम, और रखेंगे एकेडमिक काउंसिल के सामने, एंड देखते हैं काउंसिल का क्या डिसीजन होता है। बट वन थिंग इज डिसाइडेड दैट वी वुड स्टार्ट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, उसकी निटिग्रिटी क्या होगी दैट वुड बी फर्दर डिसाइडेड बाय द एकेडमिक काउंसिल। ये एक चीज़ है। एंड इन एडिशन टू दैट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का बराबर ये फोकस रहता है कि होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ यंग माइंड, उसको सिर्फ चार दीवारियों से मत बांध के रखिए। तो जो हमारे भद्रवा का बच्चा है वह भी सपना देखना शुरू करे, पुंछ का बच्चा है, कठुआ का है, या उधमपुर का है, या आउटसाइड जो हमारे कैंपसेज हैं, उन बच्चों को भी एक इमेजिनेशन, एक उड़ान, एक उनकी सोच, उनको सपने दिखाना, ताकि वो फिर उस तरफ बढ़ना शुरू करें। तो उसके लिए हम उनके साथ भी एक इंटरेक्शन रखे हैं। स्कूल के स्टूडेंट्स, उनके साथ भी हमारा एक इंटरेक्शन है। हमारे आर्मी और पुलिस पर्सनल्स और एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ भी एक इंटरेक्शन है। तो इस तरह से हमने सारे कंपोनेंट्स, सिविल सोसाइटी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे जो है आर्मी से, तो सबके साथ हम रख रहे हैं ताकि कैंपस इन टोटलिटी हम कैसे डेवलप कर सकें। तो वो एक अभियान है और मुझे लगता है कि आप लोगों का सहयोग रहेगा तो हम उसमें सफल रहेंगे। धन्यवाद। सर, सवाल है कि इसी जो भद्रवा में जो कांग्रेस करने जा रहे हैं, इसके ऊपर सवाल निशान उठ रहे हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है। ये पहले जम्मू में होता था, अब ये वहाँ पे क्यों लेके गए? वही पैसे बच सकते थे जहाँ पे पुंछ में जिस तरह से हालात बने हैं, वहाँ पे काफ़ी तबाही हुई है, उसको डिवाइड कर सकते थे। क्या कहें? ठीक बात है आपकी। और पहले तो ये बताएं, आपने ऑफ साइट कैंपसेस खोले क्यों? ये मेरा प्रश्न है। नहीं, मेरा सवाल नहीं है लोगों का, मैं उन्हीं लोगों को, मैं आपके माध्यम से उन लोगों को उत्तर दे रहा हूँ। ऑफ साइट कैंपसेस हम क्यों खोले? इसलिए कि जो हमारी रिमोट एरियाज में बच्चे हैं उन तक जम्मू यूनिवर्सिटी कैसे पहुंच सके। तो जम्मू यूनिवर्सिटी का यह दायित्व बनता है कि अपने ऑफ साइट कैंपसेस को एम्पावर करें, और एम्पावर करने के लिए जरूरी है कि हमारी एक्टिविटीज अपने ऑफ साइट कैंपसेस में हों, और ये पैसा जिनके लिए है उन्हीं के ऊपर खर्च हो रहा है। तो पैसा स्टूडेंट्स से आता है, उनके फीस से आता है, या गवर्नमेंट के रिसीट से आता है।
तो उन्हीं के ऊपर खर्च किया जा रहा है, कहीं और नहीं खर्च किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि हमको हमारा जम्मू यूनिवर्सिटी का जो दायित्व है वो उस दायित्व का निर्वहन हम पूरी तरह से कर रहे हैं, अपने ऑफ साइट कैंपसेस को एम्पावर करके। सवाल मेरा दूसरा, पिछले दिनों बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था ग्रीन यूनिवर्सिटी को लेकर। उनका कहना है कि ये रूल जो है सभी के ऊपर लागू होने चाहिए। यहाँ पे पिक एंड चूज का इस्तेमाल किया जा रहा है, या तो सभी के लिए हो या स्टूडेंट के लिए भी हो। ठीक है, आप अगर एग्जाम्पल दे दें तो बड़ा अच्छा होगा। वाइस चांसलर को एक एग्जाम्पल दे दीजिए कि वह अपनी गाड़ी से अंदर जाता है, बहुत सारे एक मिनट। दूसरा, हमारी टीम के लोग अपनी गाड़ी से अंदर जाते हैं। दूसरी चीज, तीसरी चीज कि हमारे टीचर या कर्मचारी या ऑफिसर अंदर जाते हैं अपनी गाड़ी से। तो इसमें से कोई नहीं जाता है। विश्वविद्यालय का जितना स्टेक होल्डर है उसमें से कोई भी वो अपनी 4 व्हीलर लेकर के नहीं जाता है। तो जो बाहर से मिनिस्टर आते हैं उन्हीं के लिए भी तो होना चाहिए ना। जी, ऐसा है कि सिक्योरिटी का अपना प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का निर्वहन करना हमारा भी धर्म है, सिविल सोसाइटी का भी धर्म है और आपका भी धर्म है। सर, आप कितनी बड़ी डेवलपमेंट देखते हैं जिस तरीके से जो कैंपस की बात कर रहे हैं आप, आउटसोर्सिंग कैंपस आपके वहाँ पे आप इवेंट कर रहे हैं, लेकिन जो कैंपस के अंदर जिस तरह स्टूडेंट्स की तादाद, टीचर्स या बाकी स्टाफ जो है वो बहुत कम है। लेकिन आपने कहा है कि अंडर ग्रेजुएट कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस होगा, उसको लेकर जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर बनेगा। तो ये तमाम चीज़ें अगर होती हैं फ्यूचर में, अगर एक सेटबैक रखा जाता है, गोल रखा जाता है, तो कितना बड़ा चेंज आप समझते हैं सोसाइटी के अंदर, क्योंकि सिविल सोसाइटी को आप इंटैक्ट कर रहे हैं इसके साथ। जी, मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर किसी एक चीज पर फोकस कर रही है तो वो कर रही है कि स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप, और जम्मू यूनिवर्सिटी इन्हीं 2 चीज़ों पर फोकस करते हुए सारी चीज़ें प्लान कर रही है। अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए मुझे क्या क्या करना है, तो निश्चित तौर पर जो हमारी शुरू में हमको फैकल्टी की शॉर्टेज पड़ेगी, लेकिन सब कुछ आइडियल सिचुएशन में हो जाए तब हम ये काम करेंगे। मैं उसमें से नहीं हूँ। डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया, दैट इज अप्रिसिएटेड अक्रॉस द कंट्री विदाउट एनी फैकल्टी। मेरी फैकल्टी होल हार्टेडली अपना उस डिपार्टमेंट में काम करते हुए सपोर्ट कर रही है। सो आई हैव फुल ट्रस्ट इन माई फैकल्टी and they will come forward, and hopefully I had discussion with the government कि धीरे धीरे करके हमको इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी के लिए पोजीशंस दीजिएगा। हम एक साथ नहीं मांग रहे हैं, धीरे धीरे करके दीजिए।